ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ SIR ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIR ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ, ਆਪਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SIR ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ BLA 1 ਔਰ BLA 2 ਹਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੋਟ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਇਸ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। अमन जी, ये जो पूरे पंजाब में इस समय सतलुज मूवी दिखाई जा रही है, what do you have to say? Who's screening these movies? What does the government know about it? ये स्क्रीनिंग कैसे हो रही है, प्राइवेट स्क्रीनिंग्स, और इसका पॉलिटिकल मोटिव क्या है? नहीं, इसमें देखिए गवर्नमेंट का तो इससे कोई वो नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का स्क्रीनिंग होनी ना होनी, उसको कंट्रोल करना ना कंट्रोल करना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है या उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जहाँ तक जो प्राइवेट अब स्क्रीनिंग हो रही है, ठीक है ना, वो तो इंडिविजुअल्स आर डूइंग इट। हाउ कैन गवर्नमेंट प्रमोट इट और डिमोट इट? वी एज ए गवर्नमेंट वी कांट डू एनीथिंग ऑन दैट। नहीं, दैट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए इसमें मेरा इंडिविजुअल व्यू पॉइंट ये है कि जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, चाहे किसी इंडिविजुअल का है, चाहे स्टेट का या कंट्री का है, और चाहे सोसाइटी का है, आप उसको डेसिमेट तो कर नहीं सकते, आप उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते।
इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि हज़ारों नौजवान जो हैं उस समय उनमें शायद बहुत सारे बेगुनाह भी होंगे। वो पुलिस एनकाउंटर्स में या जैसे भी वो उनका जिस सब्जेक्ट के ऊपर मूवी बनी है वो एलिमिनेट हुए। ये इस मूवी में भी खैर अभी तक मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ आज हर कोई बात कर रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये भी कि इससे पहले भी एक काला दौर पास्ट पंजाब ने देखा है। किसी के भी व्यूइंग के ऊपर, किसी के भी कुछ कहने के ऊपर, किसी के भी कुछ सोचने के ऊपर इन अ फ्री एंड फेयर कंट्री बंदिश नहीं लगनी चाहिए, ना ही होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम इतना भी ज़रूरी, इतना मैच्योरली मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और स्टेट को भी और स्टेट के लोगों को भी उस हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए कि इससे किसी भी तरह की कोई सेंटिमेंट्स या इमोशंस या जो घाव हैं वो हरे ना होएं, क्योंकि हमने बड़ा औखा काला दौर तकरीबन 20-25 साल का वो पंजाब ने देखा है। चाहे कोई बेगुनाह किसी टेररिस्ट की गोली से मरा और चाहे वो किसी पुलिस की गोली से मरा, पंजाब का बच्चा मरा है, किसी बहन का सुहाग उजड़ा है, किसी बहन की को राखी जिसको बांधी थी वो ख़त्म हुआ है, किसी माँ की गोद उजड़ी है। सो मेरा सिर्फ और सिर्फ इसमें कहना इतना ही है कि ये दिस शुड नॉट बी टेकन एज ए डबल एज स्वॉर्ड कि जी किसी भी तरफ चलेगी तो नुकसान पंजाब का होएगा। हाँ ठीक है, मूवी बनी है, फैक्ट्स पे बनी है, या उससे किसी का भी जख्म जो है जख्म ना हरे हुए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पंजाब उस काले दौर से गुजरा है। अमन जी, कुलदीप धालीवाल ने सीधा सीधा एलिगेशन लगाया कि सुखबीर बादल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है जिसके बाद ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाई गई, और सुखबीर बादल ने खास तौर पर चैलेंज किया है कि आप इसे प्रूव कर दो, मैं सियासत छोड़ दूंगा। नहीं देखिए, इसके बारे में मैं तो नहीं, इसको कुलदीप धालीवाल जी ने कहा है तो बेहतर है वही बता पाएंगे किन फैक्ट्स के ऊपर कहा है। इस बारे में मेरी कुलदीप जी से कोई बात नहीं हुई है। और रवनीत बिट्टू ने भी कहा है कि ये सीधा सीधा सिर्फ पैसे की, दिलजीत दोसांझ पैसे के लिए कर रहे हैं कि हाँ उनकी फिल्म हिट हो जाए, पैसा आ जाए। देखिए इसमें लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। ये एक इशू ऐसा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स शायद इसको अपनी सियासी एडवांटेज के लिए कोई बात कर रहा होगा, लेकिन मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि इसमें कोई भी ऐसी तिखी बात, इसमें कोई भी ऐसी किसी को चुभने वाली बात, इसमें कोई भी ऐसी बात की जिससे फ़ायदा तो कोई होए ना पंजाब का माहौल दुरुस्त रखने में, सही रखने में, लेकिन ऐसा माहौल बन जाए कि फिर दोबारा मुड़ के वैसा दौर कहीं खुदा ना खास्ता परमात्मा ना करे, गॉड फॉरबिड, कहीं ना आ जाए। सो इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से अक्रॉस ऑल पार्टीज़, अक्रॉस ऑल इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े ठरम्मे से, बड़े ठंडे मन से, बड़ी शांति से इसको देखना पड़ेगा। जो हुआ, जैसे मैंने पहले कहा कि चाहे कोई बेगुनाह पुलिस के एनकाउंटर में मरा है, चाहे वो टेररिस्ट की गोली से मरा है, पंजाब का बच्चा मरा है। As president of the ruling party in this state, what is the government doing about this issue? ये जो screenings हो रही हैं, About what issue जी? ये legal है screening या illegal? Is there a concern about this? फिल्म बैन है, फिर भी स्क्रीनिंग हो रही है। अकाली दल ने भी बोला कि हम हर जगह दिखाएंगे। गुरुद्वारों में दिखाई की बात हुई है, रात वो भी बोला दिख है, रही है, आज रात भी शुरू दिख हो रही है। चुकी है screening। दिखाई जा रही है। तो चलो माहौल खराब हो सकता है, ये एक वजह नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। मैं एग्रीड। मैं आपसे पूछता हूँ, आज मेरा आपसे सवाल है, व्हाट एज ए गवर्नमेंट वी शुड डू? If it is banned, then the screening is illegal. जो जी हाँ, जो अगर जिस ban है, जैसे screening- मेरी देखिए, इसमें मैं यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू अ रॉन्ग पर्सन। इसके बारे में प्रेरोगेटिव जो है, फाइनल डिसीजन जो है वो ऑनरेबल सीएम का होगा। मेरी सीएम से इस बारे में कोई बात नहीं हुई, ना ही हमारी कोई कैबिनेट में इसके बारे में बात हुई है।
बट मेरा इसमें कहना ये है कि फिल्म बैन होगी, हट भी गई, उसका क्रेज बढ़ गया। ये ह्यूमन नेचर है जी, ये ह्यूमन साइकी है। आप किसी भी चीज़ को ओप्रेस या सप्रेस करोगे उतने ही ज़्यादा ज़ोर शोर से वो और बाउंस बैक करेगी। मैंने आपकी बात मान ली कि जी बैन होगी, हटा दी उन्होंने, अब उसका क्रेज और बढ़ गया। अगर हम आज, मेरे को नहीं पता कि सरकार का या सीएम साहब का इसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट रहेगा, अगर हम मैं एज अ लेमैन बात कर रहा हूँ कि अगर सरकार भी, पंजाब सरकार भी उसको हटाने के चक्कर में पड़ेगी तो और बाउंस बैक होएगा। उससे अगर कहीं सपोज कन्फेंट्रेशन हो जाती है, देन व्हाट डू वी डू? सो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरी कहने की रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि इसमें जहाँ पे मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिक्वेस्ट की है, जहाँ पे मैंने 3 करोड़ पंजाबियों को रिक्वेस्ट की है, मेरी इसमें आपको मीडिया को भी यही रिक्वेस्ट है कि जो पास्ट में हो गया, बड़ा दर्दनाक, बड़ा काले दौर से पंजाब गुजरे दोनों तरफ से, आने वाला दौर में ऐसा कुछ भी ना होए, ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी